Namaskar and welcome to Sangam Talks. And in today's session of Person Behind the Persona, we have with us the one and only Professor Kapil Kapoor ji. The man needs no introduction, but since it's protocol, so we have to, and so I'll try. So Professor Kapil Kapoor ji, to begin with, he is one of he's a unique person, of course, but he can be called in the right sense the father of modern academic study of Indian knowledge systems. He started Indian knowledge system studies in universities in India when nobody was even talking about it. This is decades back. And apart from that, he professionally, Professor Kapil Kapoor ji was the former Pro-Vice Chancellor of JNU. He was the former chairman of Indian Institute of Advanced Studies, Shimla. He is the member executive council of Nehru Memorial Museum and Library, Delhi, and he has been instrumental in transforming it into the Prime Minister's Museum. He is also the editor of a very unique 11-volume set Encyclopedia of Hinduism, which was stuck for like 20 years, but after he joined, he was the one who saw it to the finish line and got it out. Apart from that, he's also working on the Sahitya Akademi sponsored Encyclopedia of Indian Poetics. He has a 4 to 5 page long CV. I can't go through it all. I need to catch some breath. So Professor Kapil Kapoor ji, we welcome you. Thank you very much. And Thank you. It is such an honor to have you on Sangam Talks. And this is going to be unique because it's not going to focus on the work you have done till now, which is onerous and humongous. The books you have written, the articles you have written. And also one more thing, Professor Kapil Kapoor has the distinction of being a person who has been nominated he has been a member on many ministries, union ministries as a committee member, Ministry of Culture, Ministry of Education. And so he's a busy man, and so we'll try to take some time of his. And he has strongly stood his ground, resisted many offers from prestigious elite academic institutions abroad because he stays steadfast in his devotion to Ma Bharati and to raise the standards of education in India, rooted in Indian dharmic philosophies. Professor Kapoor ji, one more time. Namaskar. Thank you so much, and thank you for being here. It's an honor and a pleasure. So we are going to dive into your personal life in this interview, no work related. It's coincidental agar beech mein aa jayega to, because there's hardly any difference between your life and your professional life. It's mixed. So Professor Kapoor ji. You made me start thinking, when you said he needs no introduction, that's a very interesting statement, because in fact I have no introduction. See, there is nothing really to introduce, except that I've been a teacher for long. I've been teacher now for 62 years, and I completed my MA when I was 19, and when I completed my MA I got the job, and since then I am at it. My mental attitude, I think, has been one of living exactly in the present, doing whatever is there before you, and when it is over, doing this, it's gone. So I don't really remember, you have reminded me of many things, that he was this, he was this, he was this. But these things don't register with me. Things that have been done or have happened through me, which is a better way of putting. I think I look upon, whenever people remind me, first of all, I don't recognize. जैसे कि आपने ये बनाया, जैसे JNU में आपने संस्कृत का केंद्र बनाया. After I had left JNU, that center was set up in 1999. I left JNU in 2005, and in another 2008 or 9, some correspondent girl, she called me and said that, sir, you created that Center for Sanskrit Studies.
and he also made that building in the shape of swastika. Swastik. तो मैंने कहा you are grossly mistaken that I made the center or I made the building. Today, if I want, I can even make a room. Can't even make a room. कमरा भी नहीं बना सकता, है ना? और एक छोटा सा मैं ऑफिस भी नहीं सेटअप कर सकता. तो वो हुआ इसलिए कि JNU था. I was only an instrument, and it fell to me to make it happen. Swastik building, she said that, sir, swastik is it is a Nazi symbol, and it's a very Hindu, symbol, and we are after all secular people. And तो मैंने कहा, what do you think? Do you think by my saying the university allowed the building to be constructed? Because there is a building committee in the university, and every design of building that is to be built has to go to them. So I proposed this idea, and I was not a member of that committee, but I was Pro-Vice Chancellor at that time. So I had a right to be present in any meeting of any committee. I may not be, I was not qualified to be a member, but nobody could stop me from interfering in my position. So the discussion was going on. I went and sat down and I listened. And there, they were all saying that this is a communal design, and I said, yes, of course. They said, what do you think? I said, yes, it is a communal design. But it's a minority community design. Swastik is sacred to the Jains. So it's a minority community whose design it is. Since I knew that not educated Indians do not have much idea about India or about communities, so I knew that they will not reach the conclusion that if it is Jain or Buddhist, then it means it is Hindu also. So I sold the idea that it is a minority design, and they accepted it. But I took care that on top of the building I installed lights. And if you know the JNU, the aircraft which land, they go over JNU and they go right just on the side of that. So anybody sitting on this side will see at night a lighted swastik. So we planted on the JNU landscape swastik. But it was pushed through like that, it was pushed through. There was opposition, but the point is that, people who are either left or right or who are pro or anti, they are not all of them are sincere people. They are more, it's more like, something which will, many people in India in the last 50, 60, 70 years, they have been, anti-Indian tradition, anti-Indian thought. I mean, I say, an Indian tradition and Indian thought is essentially Sanatan, Hindu. And they have been against this not because they have thought about it and they find something fundamentally wrong about its foundational principles, but because it was profitable to do that. So if you do that, then the government will put you in some committees, the government will make you chairman of something, and the government will give you a position, higher position, your promotion will be easier, and you will travel abroad, you will be sent abroad. So it is purely for most people profit motive.
which made people think like this or that. And Nambarji, Professor Nambar Singh ji, a very renowned Marxist thinker, a very great teacher of Hindi, and we happened to be together for long in the university. He was about 10 years senior to me in age. So when he was head, I was only a member of the department. When he was the dean, I was the head of the department. But in the beginning, you know, we were together. The president is the, what is called the, he was the chancellor of the university. And there were president's nominees on the executive council. One professor, one reader, and one assistant professor. One associate, one assistant, one professor. And way back in 1976-75, Nambarji was the professor nominee, Rahmatullah Khan ji was the associate professor nominee, and Kapil Kapoor was the assistant professor nominee. Center for English. We were able to, we had some problems because it was a new center. We were very small faculty. We were hardly three members, and we were running 2 MA programs. On students, you know, in the center, once Nambarji was the dean. I remember 2 things about that. One is this one. Our students, they protested against one of the teachers. We were only 3 and assistant young. They said that in Massachusetts, in MIT, the senior most professor teaches the introduction to linguistics, and here the junior most and the teacher who doesn't know the subject, he teaches. So we will not attend his classes. I said, what can we do? If the students don't attend one teacher's class out of 3, how can we run the program? So वो काफ़ी टसल चला. Then at one point, you know, I resigned as the head. And then Nambarji called me. And Nambarji wrote a beautiful, you know, letter to me. He said that you created this center. In fact, I had done that. And you have, with just the faculty of 3, you are running 2 programs. If you step down, it will be wound up and the teachers will be dispersed in various centers. So that is one. He was fond of me, he was senior to me, but he and I used to, you know, be mischievous. Now, for example, one day I was sitting with him, traveling with him in his car, and near South Delhi, a new temple had been built up. New temple. तो मैंने कहा नाम्बर जी ये हिंदू लोग बहुत ख़राब हैं. कहते क्यों क्या? मैं कहा देखिए एक और मंदिर बना दिया, अब बेचारे मुसलमानों को ये भी तोड़ना पड़ेगा. हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको तोड़ने के लिए. तो he used to look at me, you know, this was, and I used to tell him कि नाम्बर जी आप देसी ड्रेस पहनते हो पर आपका माइंड भी देशी है. यू थिंक लाइक द वेस्ट. मैं तो पेंट कमीज पहनता हूँ तो मेरा माइंड बिल्कुल देसी है. यू नो इंग्लिश लिटरेचर की किताबें जो हम ऑर्डर करते थे लेटेस्ट, द फर्स्ट पर्सन हु रेड देम वाज नाम्बर सिंह. और आई एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ English and linguistics, who would order all those new books, I would never read a book written after 1400 or 1200 AD, all old books. So my thinking was different. So I used to tell him that कि जी ऐसा है. दूसरी बात सुनिए, वो डीन थे तो उन दिनों में गाड़ियाँ नहीं मिलती थी आसानी से, कार. तो उन्होंने मुझे बुलाया कि कपिल कार खरीदनी है तो कुछ एक बढ़िया एक केस बनाओ अंग्रेज़ी में, बढ़िया अंग्रेज़ी में कि करो इस्टेब्लिश कि हमको कार की क्यों ज़रूरत है. कार तो हमें लेनी है कि अभी मुझे आना जाना है और जो हेड टीचर पर उससे तो कोई देगा नहीं. उन दिनों में कार वार नहीं देते थे. कार क्या छोड़िए, कूलर भी नहीं होते थे JNU में पहले. हाँ पुराना ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, 70s की.
एसी का तो सवाल ही नहीं है। इतनी गर्मी भी नहीं होती होगी तब तो? नहीं, गर्मी तो खैर आइडियोलॉजिकल काफ़ी होती थी। वैसे क्लाइमेट तब तो ठीक था? क्लाइमेट पहाड़ का ठीक था, पंखे से ही लोग काम चलाते थे। तो एंड इन फैक्ट द 70s, you know, when we were recruited, first batch of teachers, very young, we all retired around 2000, most of them, है ना। तो उस वक्त यंग भी थे, so there was and when the buildings were very small, earlier we were in lower campus, and an important part of learning a language is to learn how the language is spoken. Now for that we have to take our students, you know, to villages and other places to make them listen to the speakers and people of speaking language. And this exercise, research exercise, it cannot be done in large numbers. We can't carry 50 students in a bus and then go to a village and make all those 50 interact with them. It has to be small batch research. So for this research we need a car. We need a car so that we can carry 5 students or 4 students and 5 students to different places. And then in terms and all that, and we got the car. So this is, in those days, Nambarji, then when I was Nambarji was Chancellor of Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya. And when his term was over, then I was made the Chancellor. You see, so he and I were, that was एक नीचे एक वन, हाँ वो डीन थे तो मैं हेड, फिर वो जब डीन रिटायर हो गए फिर मैं डीन बना, you see, हाँ कुछ था, एक कनेक्शन था. And he was very happy. In fact, he said कि अब ना उस यूनिवर्सिटी का कुछ हो जाएगा, कपिल आ गया है ना तो कुछ होगा. But I simultaneously I was made chairman of the language expert committee at the same time. And the 2.5 years, 3 years का तो chancellorship थी, and 2.5 years मेरी वो committee का काम चला, and that was more important. We had to write a report. It was a large team. So we did that. Anyways, so they could not do much there and didn't go there very often also. In any case, Chancellor is an honorary position. He died 2 years, 3 years back, and I was asked to write. I was in Wardha. About 5 years back he passed away. So I wrote one page in which I recounted my love-hate relationship with him. You know, mischievous relationship. How this relationship, and how he was always very protective also. So Professor Kapoor ji, my question to you is, since it is the personal side of you, everybody is very interested in knowing how you were as a child, like where you were born, your parents, your siblings, your growing up, फिर school आपका, or can you recollect those things and tell us? We would like to know what was the atmosphere you grew up in. I think there is nothing very outstanding about that, except that, you know, I was born in my grandfather's house in Amritsar, and that house was built in early 30s, 1933 or so. And my generation, all were born in the same house. And in fact, one room in that house was called the maternity room. So one daughter-in-law or the other was always there. So all the we cousins, we were born there. So we were born in Amritsar. In those days, जो नई कॉलोनीज बनती थी उसको मॉडल टाउन कहते थे. पहले मॉडल टाउन, फिर बाद में गार्डन बनने लग गए और पार्क बनने लग गए, सुजान सिंह पार्क, और फिर पहले मॉडल टाउन ही होते थे. सो दैट वाज मॉडल टाउन वेयर 1930s में. They become model towns are now decrepit. In fact, by the time I was studying in Delhi University, the model town was, you know, kind of poor colony जहाँ teachers को मकान सस्ते मिल जाते हैं किराए पे. But we were born in that house, 52 Model Town. It was a legendary house.
In those days, family used to get together during Diwali. जो भी कहीं भी दूर दूर भी काम करते थे, जो अंकल्स वगैरह, दिवाली पे सब लोग आते थे. And the whole family used to get together. I did not go to school in the first 5 classes because it was a troubled time, 40s. I mean, I was born in 1940. So I was to go to school in 1944, and we were in Srinagar, Kashmir at that time. And I think I was sent to a school, and I went there, and I didn't know why I am there. So after some time I got up and walked out, and the teacher caught me. Why are you going? I say, I am going home. And who was in Srinagar, Professor Kapoor ji? Srinagar mein aapke wahan pe? My father was posted there. My father was a textile, I mean, he was a textile expert. But in those days he did a diploma in textile, and he was a very poor businessman, and he was more like, you know, एक बार design बनाया, design करना कपड़ा, because at one time he had 50 electric, you know, वो जो होती हैं, क्या होती हैं जो कपड़ा बनाने वाली machines, एक वो थे, एक उनका दोस्त था ईश्वरी दास, दोनों ने इकट्ठे वो डिप्लोमा किया था. उसने भी 50 मशीनें लगाई, इन्होंने भी लगाई. इनकी तो 3 साल बाद बिक गई, क्योंकि ये क्या करते थे, डिज़ाइन करते थे. जब डिज़ाइन कर रहे तो 50 की 50 लूम्स बंद रहती थी, और फिर वो जो एक डिज़ाइन बनता था, फिर सारा कपड़ा वही बनता था, नो वेरिएशन. तो ही फेल्ड, लाइक माई ग्रैंडफादर हु ऑल्सो वॉज ए failed businessman, you know, in the sense that he started a restaurant with his cousin. Now both of them very strong, tall people, and you know, so they will go to the restaurant in the morning and they will start eating omelette. So by the time the customers came, there were no eggs. And so the restaurant was also wound up after some time, just as my father's textile mill, 50 looms were wound up. The other person, Ishwari Das, he became the owner of a very famous mill, Dhariwal. So he progressed so much, you know, Dhariwal mills. Or my father, एक तो the landed family थी, it was a landed family, and वो भी landed family भी बनी because my great grandfather in 1878 in the Anglo-Afghan wars, he was a doctor. In those days, Lahore had a medical college, and that was a time when the medicines were kept in मट्टी के vessels में, you know, clay में होती थी medicines. तो उन दिनों में उन्होंने करी थी, तो he was a doctor in the army. And in the war, you know, the general Englishman, he got a bullet. So my great-grandfather picked him up on his horse, took him out of the battlefield, and was instrumental in saving his life. So out of that great betrayal, the family got 25 मुरब्बे ज़मीन दी गई. लायलपुर, those days the English people were making canals in Lailpur area, you know, Punjab, and Punjab was becoming the land of food grain, wheat. तो canals में, तो वहाँ ज़मीन मिली 500 एकड़ से, 15 to 25 कितना हो जाता है, something like that, इतने एकड़ ज़मीन. तो उसमें बाग भी था, there was a orchard माल्टे का. उन दिनों में माल्टा रेड ब्लड होता था, लाल माल्टे होते थे. तो आजकल किसी को वो बेचते हैं क्या कि रेड ब्लड, खोलो तो वो सफ़ेद होता है, एंड इफ़ यू कंप्लेन तो वो कहते हैं जी आजकल खून सफ़ेद हो गया, खून ही सफ़ेद हो गया. तो अब रेड ब्लड माल्टा भी वाइट ही होता है, बट यूज्ड टू बी ग्रैनरी ऑफ दैट. 47 में इधर आ गए तो कंपनसेटरी लैंड मिला 80 एकड़, वो भी कम नहीं था, 80 एकड़ का, नियर फगवाड़ा.
There was a village, Hadiabad. Now that village, which was 5 miles from the town, it is now part of the city. But that was a village, and there, you know, they got. Now my father has, because he could not do this, he joined the, he failed as a industrialist, you know. So naturally he shut down. Then he did too much, because in those days it was not necessary to work. You were a landlord. You know? And as my father later on used to say, he used to introduce himself ke mazak mein ke I am Lord Kapoor. He said, Lord? In what sense? He said, I was a landlord. Land रह गया पाकिस्तान में, तो लॉर्ड यहाँ आ गया. Land पाकिस्तान में रह गया. I was a very happy man. I think I did once talk about it, that I cannot say that my parents gave me nothing. My mother gave me blood pressure, and my father gave me sugar problem. But my mother gave me high degree of intelligence, and my father gave me a sense of humor, of the art to remain happy without money. He never had much money, but he was always very happy. And he never felt short of money, because he never had any money. And so that was a good combination. Anyways, I didn't go to school. श्रीनगर में उस वक़्त 44 में रौले, पंजाबी में शब्द था कि रौले शुरू हो गए थे, डिस्टर्बेंसेस. तो मुझे भेजा, and I ran away from school. In fact, I came back and my mother was distributing laddus in the next house. तो the lady said कि तुम्हारा बेटा तो आ गया स्कूल से भाग के. तो वो मुझे टीचर ने, जब मैं निकला तो मुझे पकड़ा. तो मैंने कहा मैंने नहीं रहना यहाँ, मैं क्यों बैठूँ यहाँ, मैं नहीं बैठता. तो एक ऊंचा ट्रंक था पड़ा हुआ, तो उसने मुझे ट्रंक पे बिठा दिया. अब मैं तो छोटा सा था, तो आई कुड नॉट जंप. देन आई यूज्ड माय माइंड कि भाई क्या करें. आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, क्राइंग लाउडली. एंड उठाया उसने मुझे कि जा भाग जा, घर जा. सो आई केम अवे. आई वॉज देन, यू नो, they employed a teacher to teach me. And my elder sister was a very good girl, very obedient, and a very bad student. And she very faithfully, you know, sat and listened. But I would, you know, moment the teacher was, Panditji was talking to her or something, I will run away and go into the garden. I will be brought back by my mother. And then one day उनको चूटी काट दी मैंने, मास्टर जी को. चूटी काट दी, तो मास्टर जी refused to teach me. You see, I didn't go to school in the sense that, but my mother taught me everything. Everything. She taught me everything, and she knew everything. She even taught me Urdu. She taught me Hindi, she taught me elementary Sanskrit, mathematics, history. She was very good in history, and she used to give me key sentences of history. You know, I used to ask her, for example, medieval history. She says कि मध्यकाल में एक sentence. She was a one sentence woman, and she generally spoke in metaphors. और जो मुहावरे जो होते हैं ना, लोकोक्तियाँ, उनमें बोलते थे. तो उसने कहा कि वो मंदिर तोड़ते रहते थे, हम मंदिर बनाते रहते थे. This was the medieval history. Modern India, राजे बदलते थे, रियाया नहीं बदलती थी. पहली बार हुआ कि रियाया बदली, लोग बदले, not the king, है ना. And I remember you told me once that your mother came from a family of professors. Yes, yes, yes. My 3 maternal uncles were professors in Pakistan. One, the eldest one was of philosophy, the second one physics, and the third one chemistry. And most people later on, my own cousins, उनके बेटे वो बड़े उम्र में थे मेरे से, बहुत ही बड़े थे. I was the youngest in that generation, maternal side में. They said that I went very close to my philosophy Mamaji, professor, who once, I remember one thing about him. I was like, he would put his hand on me and he was walking with me, and he said, Kapil Kapoor. He used to call me as Kapil Kapoor. Kapil Kapoor, बड़ी ज़िंदगी देखी है, बहुत लोगों से मिले हैं, बहुत पढ़ा,
बहुत पढ़ाया, बहुत सोचा, एक ही बात समझ आई बस ज़िंदगी में। मैंने कहा जी क्या, कि कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग ख़राब होते हैं, बस। उन्होंने तो कहा कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग अच्छे नहीं होते। अरे ये लगा मुझे कि काफ़ी साल तो मैं सोचा है कि ऑर्डिनरी बात है। आई रेड अरिस्टोटल्स पोइटिक्स, अरिस्टोटल का पोइटिक, उसमें आई रेड द लाइन, होल ऑफ मैनकाइंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, दोज हु आर गुड एंड दोज हु आर नॉट गुड। तो मैं क्या, मामा जी तो अरिस्टोटल बोल रहे थे, अरिस्टोटल बोल रहे थे, इसी उस वहाँ से आ गया तो कनेक्शन। एनीवेज जम्मू में भी आए तो जम्मू में मैं गया स्कूल में, तो मेरी लड़ाई हो गई टीचर के साथ। टीचर ने मुझे से थप्पड़ मारा, तो मैं तो आई वॉकड आउट। तो उसने कहा मैं नहीं बैठूंगा यहाँ, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। मेरी सिस्टर बड़ी थी, वो दो क्लास आगे थी, तो वो शी हैड ए फाइट विद द टीचर कि तुमने भाई को मारा कैसे एंड ऑल दैट चक्कर वगैरह जो सिस्टर्स नॉर्मली करती हैं। तो वो झगड़ा और बढ़ गया टीचर के साथ, तो आई डिडंट गो टू स्कूल। बाद में मदर टॉट। देन वी केम टू मोगा। व्हेन वी केम टू मोगा, बाय दैट टाइम माय सिस्टर वाज इन 5th क्लास, आई वाज इन नो क्लास, है ना, क्लासलेस। तो माय फादर, दिस वाज नाउ 48 or 47, 48, वी केम टू मोगा। ही हैड सम खादी इंडस्ट्रीज कमीशन का जॉब था, तो ही टुक अस टू एडमिट कराने मथुरा दास एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल फॉर गर्ल्स पहले आता है, और एडजेसेंट बिल्डिंग मथुरा दास एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल फॉर बॉयज़। सो फर्स्ट वी वेंट टू द गर्ल्स स्कूल एंड माई सिस्टर वॉज इन द 5th क्लास इन जम्मू। तो उन्होंने कहा जी, उन दिनों में दे वर नॉट आस्किंग फॉर सर्टिफिकेट्स बिकॉज 47 पार्टीशन ये वो। तो उन्होंने, हेडमास्टर ने पूछा बच्ची को कौन सी क्लास में, कि 5वीं में। ये 5वीं में है जी। वो जब फिर गए वहाँ बॉय स्कूल में, तो उसने पूछा जी कौन सी क्लास में, तो मैं तो किसी क्लास में ही था ही। तो उन्होंने कहा 5वीं क्लास में। मैं भी 5वीं। सो वी बिकेम इन द सेम क्लास। How young are you from your sister? Almost 2.5 years. 2.5 years. Maybe 3, nearly 3. नहीं, हाँ 2.5. She was 38 January. I am November 40. तो 2.5 years. तो वो 5वीं में, भी 5वीं में। And first time I took the exam, paper मिला, I copied it very neatly and submitted the copy. I thought कि मुझे कॉपी करना है। I didn't know what is the exam and all that. चलता रहा ऐसे ही। Anyways, I became a good student soon. How did this transition happen from copying to a good student? कॉपिंग ये कि घर आए तो मदर ने पूछा कैसा, मैंने बड़ा अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। जब रिज़ल्ट आया तो फेल, 0। को क्वार्टरली एग्ज़ाम था वो भी 0। तो उनके जैसा जी, तो देख क्या लिखा है, तो देखा कि उसको कॉपी किया हो पेपर। उसने कहा ये बेवकूफ़, इसका जवाब लिखना होता है, गधे, इसका जवाब लिखना होता है। I mean, I had certain degree of native intelligence, but I was not a hard-working student. Even now, I am not very fond of reading books. I am more fond of talking. Writing भी बहुत कम, मतलब कि writing तो मतलब लिखते लुखते बहुत रहते हैं, पर publishing नहीं करते। Your teachers were good there? Do you enjoy it? I'll tell you that when I started having good teachers whom I remember even today, 2 teachers, and you know they were the formative, वो जो होते हैं ना shifts in life होते हैं at some point. So 5th ज्वाइन किया मोगा के बाद my father was transferred to बटाला, फिर हम बटाला चले गए, फिर बटाला से we came back to Phagwada, our village, where our land was there. So we came to the village. So I, from class 6 to 10th, I was in the village, and I used to cycle to the city. And my sister,
Also, she was to go, so, and I was small in stature, तो मैं वो टांग डाल के नहीं साइकिल चलाते, और सिस्टर पीछे बैठी हुई है. So you can imagine the kind of journey every day. फिर उसको वापस भी लाता था सिस्टर को. And my sister was not very good in studies. Anyways, तो वो in that school, this was the Arya school, Phagwada, Arya school. There were two teachers. One I still, उसको हम कहते हैं Baba. He was the grandfather of our class fellow, his great grandfather. And he used to teach geography and mathematics. And I still remember him as a classic teacher. See, in geography, he used to give us the idea of the map, country का, कि भाई ये Britain, तो map. मतलब he used to teach us, हम लोग, we were able to draw the map of the whole world and the maps of different countries. And वो टेस्ट करते थे, जैसे अगर ये ब्लैक बोर्ड यहाँ है तो he will sit like this, ऐसे, and he will call the student के जैसे राहुल जी के, ये दुनिया का नक्शा बना. अब जैसे ही वो लाइन टेढ़ी हुई तो किक मारते थे पीछे से, लाइन टेढ़ी होने पे. So most of the students became left-handed. वो वहाँ आके उल्टे खड़े होते थे और खब्बे हाथ से किक नहीं. और मैथमेटिक्स अरिथमेटिक में Did you get any kicks from him? No. No. I was, even today, if you tell about me, I can draw the map of the world. I learned it so well. इंडिया का मैप, इसका मैप बड़े बढ़िया बनाने आते थे. यानी जोग्राफी बिकेम वेरी रियल, ये आइडिया द होल. नहीं तो लोगों को आइडिया नहीं होता है इंडिया, कि भाई इंडिया क्या है ना, या इंग्लैंड क्या है, या एशिया क्या है. बट वी वर टॉट. एंड अरिथमेटिक में he used to be very, 3/4 का मुहावरा, 3/4, multiplication by 3/4, multiplication by 2/3, पूरा ज़बानी आपको आना चाहिए. इसी आजकल तो वो आजकल करते हैं ना, उससे क्या वो कैलकुलेटर, हाँ, कैलकुलेटर से. he used to put the calculator in the mind, multiplication में, addition में, subtraction में. And till today, when I go, अब तो 1-2 साल हो गए नहीं गया, शॉपकीपर में जाओ, जाके अच्छा जी ये दे दो, ये कितने का जी, ये दे दो, ये कितने, ये कह दो, अच्छा जी टोटल करो, और वो बैठ के अपना उस पर करता है, तो मैं ज़बानी बता देता हूँ कि इतना हो गया है. एंड आई वॉज सरप्राइज व्हेन माई डॉटर वंस टोल्ड मी, पापा व्हाट इज़ 5 into 7? 5 into 7, वो भी वहाँ से कैलकुलेटर पे. एंड द प्रॉब्लम विद द कैलकुलेटर इज यू कैन नेवर check to find out whether you have made a mistake, क्योंकि आपने हाथ कहाँ लगाया है. Teachers in those days, they were held in very great respect, very great respect. And if a student, let's say, was punished, थप्पड़ मारा टीचर ने, और वो अपने साथियों को रिक्वेस्ट करता था कि मेरे फादर को ना बताना, don't tell my father that the teacher slapped me today, क्योंकि father will ask why later. First the father will also slap and then he will say कि क्या किया था. आजकल तो माँ बाप पहुँच जाते हैं कैसे बेटे मेरे को, इसलिए सारी बिगड़ी हुई जनरेशन है ना. तो उस वक़्त we used to, पापा जी को मत बताना, उनको मत बताना. तो ये इतना होता. और वो भी टीचर्स भी जो होते टोटली डिवोटेड होते थे. द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन फॉर देम वाज नॉट ओनली टू मेक यू डू सम्स करेक्टली एंड स्कोर मार्क्स, बट दे यूज टू ट्रांसफॉर्म यू, दे यूज टू मेक यू बेटर ह्यूमन बींग्स. एवरी टीचर, द गोल वॉज टू मेक ए बेटर ह्यूमन. एंड दे वर सो केयर. फॉर एग्जाम्पल माई फादर यूज टू सेंड मनी ऑर्डर्स, एंड मनी ऑर्डर आते थे स्कूल में मेरे नाम पे, मैं छोटा था. ए टीचर ऑलवेज यूज टू टेक दैट, एंड ही लिव्ड इन द सिटी, बट फ्रॉम द सिटी एवरी इवनिंग दैट डे ही वुड साइकिल टू द विलेज
and hand over the money to my mother. You see? So this kind of care, it's they're like role models. And you know, you learn, you look at them, and then that grand old man, कुलभूषण था उनके ग्रैंडसन का नाम, आई स्टिल रिमेंबर, कहते माँ दा कुलभूषण है, ना तो तेरा बड़ा सुंदर रखा, कुल का भूषण इतना नालायक है, ये तू बाल पकड़ लेने, कंघी तो बड़े प्यार से की, इतना टाइम लगाया आधे घंटे में, आधा घंटा कंघी करी है, आधे घंटे में तू होमवर्क नहीं कर सकता था। तो बाबा जी का पर्सनल, मैं इनको ये बता रहा था कि वो इतने केयरिंग होते थे, एज यू नो द गोल, द टीचर वॉज नॉट देयर ओनली टू टीच यू इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू बी, दे मेड यू इनटू बेटर ह्यूमन बीइंग्स, यू नो, दे टॉट यू वैल्यूज़। तो वो करते थे। तो बाबा जी कैसे एग्जाम्पल कैसे थे, अपने ग्रैंडसन को, उसका नाम था कुलभूषण, तो वो लड़का नालायक सही था, मतलब काम नहीं करता था, वो मैथमेटिक्स का काम नहीं किया कि मेरे ग्रैंडफादर तो हैं। तो मैं, हमारे सामने एक बार हुआ, वो होमवर्क चेक कर रहे, तो कुलभूषण का, उनका मैं तो नहीं किया, तो उन्हें कंघी बनाता, बाल अच्छे थे उसके, तो बाल पकड़ दिए हैं, माँ दा कुलभूषण है, ना तो बड़ा अच्छा रखा है कि कुल का भूषण है, हैं? तो ये कंघी में कितना टाइम लगा, आधा घंटा, तो उस आधे घंटे में ये नहीं कर सकता था, सारे उसके बाल ऐसे। खबरदार कल से अगर काम ना किया तो कंघी करके मत आइयो। कंघी करके मत आइयो। एक दिन बाबा जी डिड नॉट कम, 7 बजे क्लास होती थी, 7 बज गए, तो कुलभूषण कहता है आज नहीं आएंगे। रात को वो फर्स्ट, एक सिंगल छोटा होता है, 10-12 फुट का होता था कमरा, तो छत पे सोए थे, कहते छत से गिर गए रात को, तो आज नहीं आएंगे। तो हम बड़े खुश, वो बड़ा खुश कि आज नहीं आएंगे, तो हम भी बड़े, हम भी खुश, आ गए बाबा जी साइकिल चला के, और आते पहले गाली देनी शुरू कर दी। मैं वो गाली तो नहीं बोलूँगा, हैं, सबको, कि हाँ तुम सोचते होगे कि बाबा तो मर गया, आज बाबा नहीं आएगा, बड़ा खड़े हो सारे, कापियाँ खोलो, कम की तक नहीं कीता। सोचा कि बाबा मर गया। एक वो टीचर थे, अच्छा एक अंग्रेजी के थे, ब्रह्मानंद जी। एंड सर, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आई एम टॉकिंग ऑफ 1950-51. In 1950-51, he was teaching us transformational grammar, which Chomsky, you know, enunciated, created in 1957. 50, exactly. He used to teach us, you know, exactly in the same way. He would write a sentence, you know, write a sentence. Mohan eats mangoes, all right? Then he will call a boy to write the sentence. तो उसे लिखवा दिया, फिर एक को बुलाया स्टूडेंट को, he will call another student. अच्छा इसमें बताओ कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो ना, तो वो कहेगा जी अच्छा अंडरलाइन कर दो, हाँ नहीं लिखो नीचे सब्जेक्ट। दूसरे को बुलाया, ईट्स क्या है, तो जिसको आते हैं वो कहेगा ये ऑब्जेक्ट है। तो चपेट पड़नी शुरू हो जाती थी, ईट्स क्या है, फिर पूछते थे क्या है, तो अच्छा वर्ब है, ठीक है, देख वर्ब है, लिख दे, लिख वर्ब, स्पेलिंग लिख वर्ब के, VURB verb. You get the point how teaching was being done. And then he will get it corrected by a student, not himself, the student. And the student will say this, okay, come in, beta isko theek hai, likh le. Then object, okay. Now he will ask a student कि ये एक्टिव सेंटेंस है कि पैसिव है, तो ये एक्टिव है, अच्छा एक्टिव है, ठीक है, इसका पैसिव बनाओ। एज स्टूडेंट को कहा तो पैसिव बना। आजकल बड़ी लंबी चौड़ी लोग थ्योरी करते हैं, क्लास पार्टिसिपेशन, यू शुड मेक द स्टूडेंट थिंक, है ना, और थिंक आजकल तो टीचर भी थिंक नहीं करते, है ना, वो भी अपना गूगल पढ़ के आते हैं सुबह सुबह, तो उसका पैसिव, ऑल राइट, उसको बोले किसी को आने तू बना पैसिव, वो बोला कोई सेंटेंस,
उसे पूछते थे कि इसने ठीक बोला, कि जी नहीं, क्या गलती है। तो क्लास में से फिर करेक्ट सेंटेंस पैसिव बनवाना, फिर एक को बुला के लिखवाना, ये उसके नीचे गैप रख के नीचे, मैंगोज आर ईटन बाई मोहन. Now he will say, this is where, Chomsky's transformation grammar comes in. It is all about that. He said कि भाई अच्छा इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं बताओ, क्या क्या चेंजेस हुए हैं. तो वन विल से कि जी ये मोहन इधर था, मोहन इधर चला गया, है ना. ओके, नंबर 1. अच्छा अब ये बताओ कि मोहन इधर चला गया तो ये अब भी सब्जेक्ट है, मतलब वर्ब के साथ एग्री करता है ना. मैंगोज, मोहन ईट्स मैंगोज. अब हो गया आर ईटन बाई मोहन, तो पूछते थे क्या वो एग्री करता है, ये भी सब्जेक्ट है. तो कहते कोई तो कहता था हाँ जी, है ना. डरे हुए जो होते हैं ना, आता तो होता नहीं, तो जो इंटेलिजेंट होते हैं. अच्छा सबसे ज़्यादा पनिशमेंट वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट को देते थे. ही विल नॉट एक्सक्यूज अ मिस्टेक मेड बाय एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. पेंसिल अड़ा के जब तक वो ठीक नहीं बोलेगा ना, और वो रोल करते रहेंगे. मेरी सिस्टर कहते, वो वहाँ भी पढ़ाते थे गर्ल्स स्कूल में, कहते थे कि उनको मैंने बताया मेरा भाई भी पढ़ता है, तो कहते वो तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बड़ी. मैं कहा अच्छा, ऐसा कहते थे. और मुझे रोज़ पनिशमेंट होती थी. जो भी बात कान पर, दूसरा उनका होता था कान को रिवॉल्व करना. बट लाइक दिस ही वुड लिस्ट द चेंजेस, देन आस्क पीपल टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द चेंज. हाँ, एडिशन हो गया है, अच्छा ये डिलीट हो गया है, ये मॉडिफाई हो गया है, ईट्स का ईटन हो गया है ना. और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट पोजीशन में आ गया है. अब मैंगोज है, अब आर हो गया है, वर्ब एग्री उससे कर रहा है. वही डिलीशन, एडिशन, मॉडिफिकेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं चॉम्स्की की. और ये चॉम्स्की की नहीं है, चॉम्स्की ने बताया नहीं, ये बेसिकली यास्क की निरुक्त 9th सेंचुरी BC किताब है हमारे एक यास्क की, वेयर ही टॉक्स अबाउट हाउ लैंग्वेज चेंजेस ओवर टाइम एंड ए पॉइंट कैन कम वेयर लैंग्वेज, पार्ट ऑफ द लैंग्वेज कैन बिकम ओपेक. आपको समझ ही नहीं आते, शब्द ओपेक हो गए. शब्द उस वक़्त ठीक था, जैसे खासकर कंपोजिशनल लैंग्वेज है, कंपोजिशनल किताबों की भाषा है, शेक्सपियर की लैंग्वेज है. जैसे शेक्सपियर में अ सिली बॉय है ना, सिली बॉय. अब सिली इन शेक्सपियर मीन्स इनोसेंट. उस वक्त अगर लड़की किसी को कहे यू आर सच ए सिली बॉय, तो वो खुश होगा. आजकल क्या है कि देखो, है ना, यू आर सच ए सिली बॉय. तो शब्द बदल जाता है, अर्थ बदलता है, रूप बदलता है, फॉर्म. वो बताते थे, ये यास्क बताता है पूरा. और कहता है 3 प्रकार के चेंजेस होते हैं, 3 प्रकार. लोप, डिलीशन, डिसअपियरेंस. विकार, मॉडिफिकेशन. आगम, एडिशन. Exactly those 3 are there. The only acknowledgement that Chomsky has done is in his aspects of syntax. In his book, in the prefatory note, he says, the only transformational grammarian I know is Panini. But Panini से this Yask is even earlier than Panini. तो ब्रह्मानंद जी हमारे इंग्लिश के टीचर थे. Believe me, I did then linguistics में diploma, I did MLit in linguistics. I learnt all my linguistics in class 7 from ब्रह्मानंद जी. वो आए थे, एक रॉबर्ट लीज was a very good friend of Chomsky, professor. He was a Jew. Lees was a Jew. Chomsky is also Jew. And Robert Lees, in fact, he wrote a big review of syntactic structures. And if Robert Lees had not written that review in Language Journal, Chomsky would not have become famous. It is Lees who brought out the originality of Chomsky's thought, and he made it. So Lees came to deliver lectures in Delhi University when I was doing my diploma. And
मैं जनरली बैक बेंचर रहता था, तो और वो इतने एक्साइट होते थे आइडिया से कि यू नो ही विल से दैट if you are not excited by the idea, you know business here, huh? Your business to be studying. ऐसे किसी को पूछना नहीं, अगर कोई बैठा कोई बात करने के वो चौक ही मारता था रॉबर्ट ली जैसे. And he says one was said, if this does not excite you, you better go home and make shoes. उसके कुछ दिन बाद मैंने नई मोटर बाइक खरीदी थी, राजदूत जो नई आई थी, सिल्वर, 250 रुपये एक्स्ट्रा दे के उस पर नीला रंग, सिल्वर मोटर बाइक, और तब हम भी सिल्वर थे, वे बैक 67 68. तो वो मुझे पूछते हैं कि दिस इज़ एन इंडियन मशीन. मैं कहा यस, इट्स लुक्स गुड, हाउ डज इट रन? आई सेड वेरी नाइस, गिव मी ए राइड. तो मैं उनको बिठाया, आया तो बस लाए. तो मुझे कहते हैं कि गुड व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम? मैं कहा आई मेक शूज़. मैं कि पूछने लग जाए कि मैंने क्या पढ़ाया था. आई मेक शूज़. He became a very great friend, and I was a teacher. Why were you a backbencher when you were such a good student? नहीं, बाई दिस टाइम आई वॉज ए टीचर ना, तो अब मैं ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा. तो फिर पहले आपके स्टूडेंट लाइफ पे तो आते हैं कॉलेज में. हाँ, फर्स्ट गो देयर नो. सो देन यू फिनिश्ड योर स्टडीज इन स्कूल. जब आप कॉलेज गए थे, आई थिंक खालसा कॉलेज में थे. हाँ, so how did you land there? Yeah, you see, I did my metric from Phagwara, Ramgarhia. Then I joined Ramgarhia College, Phagwara. It's a famous college, Ramgarhia College. Ramgarhias are carpenters. See, basically they are all carpenter community है. और हमारे तक्षक जो तरखान है ना, तक्षक बड़ी इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है. और वेदों, ऋग्वेद में बड़ी इंटरेस्टिंग उनके बारे में डिस्कशन भी है, वो बाद में बात कभी करेंगे. तो रामगढ़िया कॉलेज थोड़े दिन रहे, बट देन माय फादर माइग्रेटेड शिफ्टेड टू अमृतसर. So we went back to our house 52 Model Town, and I joined Khalsa College, Amritsar. I was 13-year-old when I joined college, because I came to 5th class without being in the 5th class. है ना? तो my sister was 15, 16, I was 13, and 4 फुट 5-6 इंच का कद था मेरा, छोटा सा. और खालसा कॉलेज में there were nobody less than 6 feet. Tall, अपना tall, healthy. 13 years in college? 13. Wow. At 13 and a few months. Then? And you know, there is something like a culture of the physique, body का. रोज खालसा कॉलेज में दोपहर को इंटरवल में हॉकियों से लड़ाइयाँ होती थी. एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर, और हॉकियों से, और फट्टड़ हो गए. एक मेरे साथ क्लास में था परमात्मा सिंह, उसकी इतनी लंबी दाढ़ी थी. तो अच्छा, दे ऑल बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ मी, मेनली बिकॉज आई वॉज सो स्मॉल, एज में भी वैसे भी. एंड उन दिनों में मैं आगे बैठता था, जब मैं नया गया था ना. ये तो मैं जब टीचर था और वहाँ डिप्लोमा कर रहा था, तो मैं बातें भी करता था, टीचर को सवाल भी पूछता था. तो एक दिन मैंने जब ऐसे 1-2 सवाल पूछे, तो एक दिन मुझे एक टॉल डार्क ब्लैक हिंदू बॉय एंड टॉल 4 और 5, 6 मेरी क्लास फेलोस, वो मुझे उन्होंने बुलाया कि इधर आ बाऊ कहते, बाऊ इधर आ जरा, कि तू बहुत लायक है, तू बहुत लायक समझता अपने आप को है. तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम नहीं सवाल पूछ सकते? हम पूछ सकते हैं, पर हम टीचर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं. तू बड़ा रोब डाल रहा है उस पर. कल से खबरदार, जो सवाल पूछा और आखिरी बेंच में बैठेगा, आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें नहीं आता. ये एक एपिसोड है. वो मेरे बड़े दोस्त बन गए
कैसे, इसके बाद मैं बिल्कुल ओबीडियंटली, और बड़ा खुश भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ये एक जो सिख का कैरेक्टर है ना, कि व्हेन दे बिकम योर फ्रेंड जान दे देंगे, एंड व्हेन दे बिकम योर एनिमी फिर जान ले लेंगे, बीच का रास्ता कोई नहीं है है ना, बीच का रास्ता नहीं होता। तो बड़े, तो एक दिन ना ऐसे ही मैं साइकिल पे जाता था ना कॉलेज, तो मैं अपना साइकिल देख रहा, तो मेरा साइकिल बाहर पड़ा हुआ, तो जहाँ मैं साइकिल लगाता था वहाँ एक सरदार लड़का वहाँ से साइकिल निकाला। तो मैंने उसको, अटेंडेंट को पूछा कि मेरी साइकिल कैसे आ गई, तो वो कहता है मैंने रखी। मैंने रखी, खबरदार तूने कल से साइकिल यहाँ लगाई तो। जब ये होता तो रोज़ होता था ऐसे ही। तो एक दिन मैंने, वो जो मेरे दोस्त बन गए थे ना 5-6, तो कहते कोई परेशानी तो नहीं है। मैं कहा जी परेशानी नहीं है, वो साइकिल में तंग करता है, साइकिल नहीं लगाने देता। कहता कौन? कहते अच्छा चलो चल तेरे नाल, मेरे साथ आ गए। आए तो वो जो आया तो उसने कहा, तो उसे कहा इधर आ, इधर आ। मुझे कहते हैं इसको चपेट मार। मैं मारे चपेट मार इसको, है नहीं हम पीटेंगे तो चपेट मार इसको। वो डर गया, उसने कहा जी क्या हो गया, क्या हो गया? कहता है गल सुन, ये जो ना यह जी जगह है जितों तू साइकिल कढ़िया, कल तो साइकिल इत्थे रखेगा, खबरदार नेड़े तेड़े आया, नहीं तो ये तो नहीं मार रहा तेनू हाथ है, असी नहीं छड्डना तेनू कल तू जिद्दां। कहता जी बिल्कुल नहीं, मजाल है, मैं मजाल है, बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर मुझे कहते हैं यहाँ से लेके लून मंडी तक, लून मंडी अमृतसर का हार्ट था, यहाँ से लून मंडी तक हमारा राज चलता है। कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो काला बामण का नाम ले लेना कि मैं काले बामण का दोस्त हूँ। काला बामण, वो जो यशपाल शर्मा जो टॉल था, वो लीडर था उनका, ही वो डार्क कलर्ड था। अच्छा मेरा दोस्त था एक राजपाल महाजन। अच्छा ही कंसिडर, उन दिनों में देवानंद वॉज द हीरो। हाउस नंबर 44, वो भी साइकिल पे आता था, मैं भी आता था, हम इकट्ठे ही निकलते थे। और उन दोनों में जो लव होता था ना, उसका भी एक तरीका होता था, सिर्फ देखने का होता था, बस देखना। वो भी क्या, जैसे हम सुबह जाते थे तो हमारे जो प्रिंसिपल था उसकी जो बेटी थी, वो क्योंकि उसका गवर्नमेंट कॉलेज इधर था, वो आती थी, तो इतनी हम टाइमिंग रखते थे कि एक बार वो दिख जरूर जाए, समझ गया ना। और बस वही था वो ना, दिख जाना। और उस वक़्त तो जब वो दूर से देखते थे कि वो आ रही है, तो राजपाल थोड़ा अपने बाल ना और सेट कर लेता था, बाल सेट कर लेता था, तो उनमें बड़ा हैंडसम था वो मेरा दोस्त, हम दोनों। तो एक दिन हम गए कैंटीन में, तो कैंटीन में गए तो वहाँ वो हमारे 5-7 दोस्त, एक का नाम था रशबेग सिंह, एक था परमात्मा सिंह, इस तरह। अच्छा रशबेग सिंह हॉकी का गोलकीपर था, हॉकी का, और उसमें कई बार होता था अगर शॉट ऊंची लगी है तो नहीं है तो मुंह ऐसे रख दिया, यहाँ आप गेंद रोक ली, इस तरह। लाल वैसे ही होता था और लाल हो जाता था, फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज फिजिकल स्ट्रेंथ। तो सारे बड़ा इंटरेस्टिंग है। आए थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठे हुए वहाँ लस्सी पता कैसे पीते थे, उनके यहाँ टेबल पे बाल्टी रखी हुई थी, उसे जा कहेंगे अरे बचन सिंह और गल सुन, तू ना ज़्यादा 3 किलो 4 किलो दही पा दे बाल्टी 3-4 किलो दही पा दे, 4 किलो खंड पा दे, अच्छा तू 3-4 किलो बर्फ पा दे हैं, तो पानी पा के चंगी तरह रिड़क के ना बाल्टी लस्सी बाल्टी लिया दे। तो बाल्टी में लस्सी, तो हमें बुलाया कि लस्सी पियो, ए लस्सी पियो, लो इतना बड़ा गिलास क्या, लस्सी पियो बाल्टी, ए सारी लस्सी तुहाडे वास्ते है, मतलब दी होल बाल्टी फॉर 2 of us। मैं कहा जी गल सुनो, पी तो नहीं सकते पर कहो तो मैं स्विमिंग करा ये बड़े खुश करता है यार, खुश करता भाऊ, बस वो तो अपना गिलास छोटे तो लस्सी लुस्सी दे के। तो परमात्मा सिंह को मैंने पूछा कि सर तो कितने साल हो गए हैं? कहते 5 साल हो गए इंटरमीडिएट में, 2 साल का कोर्स होता है, 5 साल हो गए। तो मैं कहा 5 साल तो फादर कुछ नहीं कहते?
कहते हमने उनको बताया हुआ है कि हमारा 7 साल का कोर्स है और रोज़ हॉकी की एक दिन ना ऐसे ऐसे करे परमात्मा से। मैं क्यों है वो कहते कल उत्थे ना वो भाई सामने हॉकी मारती इतने बड़े जोर दी। तो मैं कहा दिखाओ सर, इतना बड़ा खून जमा हुआ। बोले हॉकी मारती है तो कोई गल नहीं, बस हॉकी मार। और ये जब हॉकी मैचेस होते थे, हॉकी मैचेस, तो DAV जलंधर और खालसा कॉलेज अमृतसर, इनका पंजाब यूनिवर्सिटी का फाइनल होता था। इट वॉज एन एपिक बैटल। रूल्स वर वेरी सिंपल। एक साल वो आते थे खालसा कॉलेज, एक साल खालसा कॉलेज वाले जलंधर जाते थे। और रूल क्या था कि जो आएगा खेलने वो जीत के नहीं जाएगा, या तो हार के जाएगा, पर अगर जीत के जाएगा तो साबित नहीं जाएगा। साबित मतलब अनहर्ट नहीं जाएगा। आप समझे, दिस इज रूल वेरी सिंपल। जो खेलने आएगा वो हार के जाएगा, अगर हारेगा नहीं तो फट्टड़ होके जाएगा। और क्लियर डायरेक्शंस होती थी। बैक जो होते थे, बैक फुल बैक को हमने भी ट्राई मारी ना, हमने 2-3, क्योंकि वहाँ 1 महीना स्पोर्ट्स वर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। यू हैव टू डू एवरीथिंग, रनिंग फनिंग जंपिंग शंपिंग। अब हमारे जैसे लड़के भी बेचारे फंसे हुए, वो भी बड़ी कहानी है, हम तो बड़े परेशान हुए उससे। तो क्या था सर कि बैक्स को क्या कैप्टन क्या कहता था कि देख भाई, बंदा गेंद लेके आवे, गेंद लेके आवे, एक जना निकलना चाहिए, या गेंद निकले या बंदा, दोनों इकट्ठे नहीं ये हॉकी सिखाई जा रही। तो वो मारते थे, टांग पे मारनी हॉकी, गेंद दिखेगा बंदा नहीं, फटड़ो। बिलीव मी, जब वो फाइनल होता था तो मैं और राजपाल हम लोग पेड़ पे चढ़ के मैच देखते थे, काफ़ी लोग, क्योंकि हॉकियाँ चलनी बाद में। हॉकियाँ पहले प्लेयर्स की चलनी है, फिर ऑडियंस की चलनी है। You never took part in all these fights, beating वगैरह? You were never that kind of very observant, very quiet. मतलब अपन को तो एक हॉकी पड़ गई होती तो हम 1 महीना उठते ही नहीं 15 दिन अपने में वो जान कहाँ थी। एक लुधियाने में बाद में हमारा कबड्डी का कप्तान, लुधियाने में मैंने 1 साल पढ़ाया, तो कबड्डी का कप्तान था बचित्र सिंह। ये बात तो कल ही हुई मिनिस्ट्री में। कट्ट बोमन एक साउथ इंडियन हीरो था, कट्ट बोमन, तो वहाँ रेफरेंस आ गया, तो मैंने उनको फिर ये बात सुनाई। तो कट्ट बोमन की फिल्म बनी थी और कट्ट बोमन किले की दीवार से कूद, तो बचित्र सिंह कबड्डी का कप्तान था। उसका बैकग्राउंड ये है कि मैं शाम को क्रिकेट खेलता था लुधियाना में, मैं जाता था ग्राउंड में क्रिकेट खेलता था। अब क्रिकेट में नेचुरली बॉलिंग करनी है तो 6 बॉल का ओवर होता है। तो बचित्र बैठा हुआ था वहाँ और मेरी क्लास में था, स्टूडेंट था वो मेरा। अच्छा, मेरे 6 बॉल हो गए तो कैप्टन ने मेरे से गेंद ले ली, गेंद लेके दूसरे को दे दी। बचित्र सिंह आ गया, साढ़े प्रोफेसर साहब को गेंद किद्दां ले ली, तुमने गेंद कैसे ले ली प्रोफेसर साहब से? उन्होंने कहा नहीं भाई, गेंद ली नहीं, 6 बॉल का ओवर होता है, होएगा 6 बॉल का ओवर। प्रोफेसर साहब जदों तक बॉलिंग करनगे ना, बॉल कर जदों तक सुट्टणगे गेंद यही सुट्टणगे, जे होर किसी कोलों करनी है तो दूजे पासे कराओ, प्रोफेसर साहब साढ़े यही करनगे। वो कहते महाराज दूसरे भी तो करेंगे, कि दूसरे करेंगे तो उधर करेंगे बस। दिस वाज दी। वो बचित्र सिंह कहता था कि जब से मैं गांव से आया हूँ ना, मेरी डाइट बड़ी कमज़ोर हो गई है। उसका गांव से ब्रेकफास्ट आता था, 4 बॉटल्स शरबत वाली दूध, 12 अंडे का ऑमलेट, 12 अंडे या उबले हुए अंडे, आधा किलो घी शुद्ध, 8 पराठे और 1 किलो दही। ये उसका ब्रेकफास्ट था। और कहता था कि जब से आया हूँ ना, डाइट बड़ी कमज़ोर हो गई है, कहता कोई डाइट नहीं ठीक। बड़ा तगड़ा लड़का था। और मैंने वो अब तो पंजाब डिस्ट्रॉय हो गया एथनिकली, पंजाब ड्रग में और इसमें डिस्ट्रॉय हो गया। इतने लड़के स्ट्रांग होते थे, यू कांट इमेजिन, यू नो। मेरे को याद है कि इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में मंगल सिंह पंजाब का और एक जादव पूना का,
वो 2 जीते थे, वो यादव लेटर ऑन went on to win a bronze medal in the Olympics. That is the first bronze medal in wrestling that India won in those days. और इतने ये होता था. अब तो पंजाब figures nowhere in sports. Haryana does. Because Haryana still is a milk dairy country. Yes. Dairy country. Their diet is still the same. वही डायरी दूध शूध वाला काम. उनका वो जो विजेंदर सिंह है, he has defeated everybody in the world. He has not lost a single fight. You see. एंड द गर्ल्स, हरियाणा की गर्ल्स जो हैं बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, अच्छा सिमट के रहती हैं. जब वो आप उनको पोडियम पे भी खड़ी होती हैं जीत के, तो दे डोंट स्टैंड लाइक दोज गर्ल्स, सिमट के खड़ी होती हैं. अच्छा जब उसमें जाती हैं हरियाणा में, वो भी सिमट के जाती हैं बड़ा. और जब उसमें घुस जाती हैं तो शेरनी की तरह लड़ती हैं. फिर दे लाइक यू नो टाइग्रेसेस. खूब अच्छी तरह रेसलिंग में इसमें सारे मेडल जीतती हैं. तो ये परमात्मा सिंह जी का. अब मैं वो एक इंसिडेंट और सुनाता हूँ उनका, खालसा कॉलेज का, क्योंकि खालसा कॉलेज वॉज ए ग्रेट इवेंट इन माई लाइफ. 2 years. इंदर सिंह प्रिंसिपल थे, वो नए नए प्रिंसिपल बने, तो उन्होंने सोचा कोई एकेडमिक काम करना चाहिए. तो उन्होंने सब लड़कों के पेरेंट्स को चिट्ठी लिख दी कि आपका लड़का पढ़ाई में कमज़ोर है, आपका लड़का कमज़ोर है. अच्छा, उन्होंने पेरेंट्स ने वो पढ़ाई तो पढ़ा नहीं कि पढ़ाई में कमज़ोर है. उन्होंने कहा आपका लड़का कमज़ोर है. एक दिन सडनली हमने देखा टांगे पे टांगा चला आ रहा है, और टांगे में से तहमत बांधे हुए बुजुर्ग बुढ़िक उतर रहे हैं, और घी के पीपे. अच्छा, और प्रिंसिपल हम देखे जाके इंदर सिंह के कमरे में इतने सारे खड़े और उसको डांट रहे. ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ करता. इतना तगड़ा बच्चा भेजा था और कमज़ोर कर दिया है. कहाँ है? अरे मैं घी लाया हूँ. कहाँ है? वो कह जी वो सेहत सूह ठीक है, पढ़ाई च कम. अरे यार क्या तू पढ़ाई सानू ऐसे चिंता करती, सानू चिंता लग गई. हु बॉदर्स. अच्छा, मेरे को क्या कहते थे जब मैं कोई बात सियानी सी बात करता था ना कोई, तो मुझे कहते थे कौन सी किताब से पढ़ा है. देयर वॉज एन एंटीपैथी टू बुक कल्चर, यू नो, एंटीपैथी. किताब. अच्छा ये किताब पढ़ रहा. हाउ कम यू वर डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर? आप कैसे पढ़ते थे इतना सारा? मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ता था, वहाँ जरूरत ही पड़ती थी. सारे नलायक होते थे, हम थोड़े से लायक, दिमाग अच्छा था, क्योंकि हम तो ना हाकियों की लड़ाई कर सकते थे दोपहर को. अच्छा मैं बताऊं, हमें क्या था चॉइस, आपको एक गेम तो ज़रूर खेलनी है, हाँ, या एनसीसी करनी है ना, या सोशल सर्विस. एक बंगाली प्रोफेसर था, ये बंगाली तो सोशल सर्विस ही करते हैं ना ज़्यादा, वो सोशल सर्विस कराता था. तो हमने मैं और राजपाल, अब छोटा, मैं 4 फुट 6 इंच 7 इंच कद, तो हमने कहा यार एनसीसी करेंगे. जो अजैब सिंह थे, रिटायर्ड को सूबेदार आर्मी के, तो उनके कमरे में गए तो पहले तो खड़े रहे, छुट गए. हाँ की गल है कि जी एनसीसी जो हैं, एनसीसी करनी. हला ओए फलाने, और जरा बंदूक ले आई, राइफल ले आई जरा राइफल. तो कहते वो तेतों तो राइफल लंबी है. तेनू कितने तू कहता एनसीसी करेगा तो तेनू मैं खड़ा कितने करांगा. मेरे 6-6 फुट के मुंडे, उन्होंने अगे नमूना खड़ा करूँगा कि पिछे. भज्जा कहते भज्जा, तो भज गए असी. फिर सोचा हूँ असी फिर क्रिकेट खेलने, है ना, क्रिकेट. संत सिंह जी, मुझे नाम भी याद है, जो थे वो क्रिकेट के क्या होते हैं वो जो सिखाते हैं, कोच. उनके पास गए कि जी क्रिकेट खेलनी. हाँ ज़रूर. एक टेस्ट था उनका बड़ा सिंपल, वो 10 फुट पड़े, 10-15 फुट पड़े, आपको खड़ा कर देते थे, और जब गेंद उछाल के बैट से मारते थे कि बॉल रोकना. 15 फुट पे बॉल रोकना. हम खड़े हो गए,
तो उन्होंने जो मारी, हम मुँह करके इधर हो गए, बाहर निकल गए। हम कहाँ पर रोक सकते गेंद इतनी। कहते बेटा तुम नहीं खेल सकते, यहाँ तो यही है, फील्डिंग करानी है हमने, फील्डिंग करानी है, इधर खड़े करेंगे, इधर खड़े करेंगे, लोग शॉट मारेंगे, तुम्हें गेंद रोकनी है। अच्छा चलो कोई नहीं, तो एक चांस और देने हैं। मैदान च एक गेम सी हो रही थी, तो थोड़ी परे लेग की तरफ ना खड़ा कर दिया। अच्छा गेंद किसी ने मारी, किसी ने शॉट। अच्छा लेग में शॉट भी बड़ी तगड़ी मारते हैं, जो कि वो मारते हैं, पूरा घुमा के बैट मारते हैं। गेंद आ रहा मेरी तरफ, मैं अपना बता रहा हूँ, बड़ा प्यार। जब आई तो ऐसे टांग उठाई और गेंद को जाने दिया, गेंद को जाने दिया। तो कहते नहीं रहने दे काका। महाजन का भी वही हाल। हाँ फिर उन्होंने कहा मुझे, संत सिंह ने, कहते इदा है तुम सोशल वर्क करो, सोशल वर्क, बड़े ग्रेट कंटेम्प्ट के साथ तुम सोशल वर्क करो। अच्छा सोशल वर्क चलो को कर लिया। एक था कि पूरी एक महीना आपको, हर एक महीना होता था, उसमें सारी गेम्स में पार्ट लेना है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर। हम कहाँ 800, तो एक स्टेडियम का बना हुआ था, हमने 2 चक्कर लगाए, तीसरे में हम उसके पीछे बैठ गए चुप करके। तो वो ढूंढते आए कि वो कितने गए, तो मुंडे गायब हो गए हैं। 12 भज्जरे सीगे, 10 रह गए, 2 कितने गए। तो आए, तो फिर वो हाथ में सोटी, हम आगे हमसे पूरे चक्कर पूरे करवाए। हमसे कुछ पूरा हुआ नहीं सारा, तो हमारा दाखला रोक लिया। वी वर नॉट अलाउड। दाखला होता है ना एग्ज़ाम के लिए, फ़ीस लेके एग्ज़ाम पढ़ना है, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, रोक लिया। अब हमें क्या करें, हमने फिर एक सिफारिश निकाली। वो जो अजैब सिंह जी थे ना, उनका दामाद, एक दामाद से निकाली, और उसके दामाद से सिफारिश करवाई, तो सिफारिश करवाई। तो फिर जिस दिन सिफारिश हुई, तो बाई चांस हम जा रहे, अजैब सिंह जी भी साइकिल आ गए नाल, और गालियाँ निकालने लग गए हमको, हरामजादे वो साले, सारा तो कुछ नहीं करते हैं। फिर क्या हो जाए, रिश्ता निकल आता है, जाके सिफारिशा करा देंगे हैं। शक्ल देखो अपनी, बाड़ी देखो, क्या कहते हैं, हवा आएगी तो उड़ जाओगे हैं। मतलब पूरा रास्ता मॉडल टाउन तक he kept on abusing it. So when I came to JNU, after I joined JNU, I saw those grounds and I saw the hobbies of boys. Boys की हॉबी JNU में इज गर्ल वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग का ही फॉर्म है ना वो भी, और कुछ नहीं। पैड़ियाँ पैड़ी सेहत, काले काले हैं, पतले पतले, और लड़कियाँ अच्छी क्लास की भी क्लास में आती हैं। तो पूरी क्लास वॉर वेज हो रही है। और बाद बड़ी, तो मैं तो कहता था कि यू ऑल आर अपोजिट ऑफ प्लेटोज आइडियल। प्लेटोज आइडिया का था हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, यू हैव सिक माइंड्स इन ए सिक बॉडी। मगर इतनी बढ़िया ग्राउंड्स हैं, वो खेला करो। डू यू नो कि देर इज़ नथिंग लाइक स्पोर्ट्स इन JNU, है ही नहीं, nothing like sports. So वहाँ पे प्रोफेसर कपूर जी, you said you started the Sanskrit department. No, I never did. No. Never did any Sanskrit in school or college. No, you started na JNU में Sanskrit department. हाँ, JNU, yes. JNU is much later. And then because by that time so much had happened, you see. My mind, I was an English literature professor, English literature student, and did a diploma. I met a teacher who kept on mentioning Indian thinkers, Panini, Patanjali. You must tell this to the audience that there's these 2 incidents you said, that when you first taught your first class of English poems, an ode to the West Wind. That one. How you learned from your own student? That was it. I told you I started teaching in Ludhiana, and because my teacher, one of my teachers in BA was the principal there. So I joined there. He called me and I joined there. But he gave me the most difficult class, BSc, in which English is optional. So students are not serious. And their age was like mine. I was 19.
वो बीएससी वाले भी जो उनकी उम्र उतनी, अच्छा बहुत तगड़े। तो जब मैं पहले दिन क्लास में गया ना तो वो कह रहे वो सुना कोई नवा मास्टर आया है, कहते कोई नवा आया वो तो कहते ए दिस कंटेम्प्ट यू नो ए ही इज अवर टीचर। अच्छा जब हम उसके विचित्र के गांव में गए तो एक जो चाचियाँ होंगी चाची वो तो कहेंगे आ बचित्र आ कितों लाया छोटे छोटे बाहू दो छोटे छोटे बाहू कितों लाया आया ए चाची चुप कर ये साढ़े टीचर है मास्टर है साढ़े प्रोफैसर है कहते ए तेनू पढ़ाते ने तेनू पढ़ाते ने। आई हैव ए हेल्दी डिसरिगार्ड माई सेल्फ ऑफ दिस यू नो बुक कल्चर का जो वो वहाँ से इनहेरिट किया हुआ है। एनीवेज लुधियाना में जब गया तो आई वॉज फुल ऑफ इंग्लिश, नया नया एमए किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो ओड टू द वेस्ट विंड पढ़ाने गया, ओड टू द वेस्ट विंड। एंड यू नो दैट इंग्लैंड में तो जब वेस्ट विंड बहती है तो बारिश होती है, तो वो शैली की पोएम है, बड़ी फेमस पोएम है और बड़ा मुंह ऊपर करके, उस वक्त ये थोड़ा होता था कि बच्चों को समझ आनी चाहिए, उस वक्त अंग्रेजी प्रोफेसर पढ़ा रहा है, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश में अनडाइल्यूटेड इंग्लिश में पूरा लेक्चर दिया। आई वॉज स्पेल बाउंड बाय माई लेक्चर एंड आई केम आउट वेरी सेटिस्फाइड एंड ए यंग बॉय यू नो स्मॉल बॉय सरदार बॉय फॉलोड मी। आई सॉ इज कमिंग स्टाफ रूम तक, तो आई सॉट के भी ही विल कम एंड से कि आज सर लेक्चर बहुत बढ़िया था। तो ही केम एंड टोल्ड मी सर कि आज जो पोएम है पढ़ाई है ना ये पोएम गलत है, पोएम गलत है। यही गलत है क्यों? कहते हैं जी बारिश तो होती है जब पुरवैया चलती है, ईस्ट विंड है ना, इंडिया में तो जब पुरवैया चलती है तब बारिश होती है, ये तो पोएम गलत है, वेस्ट विंड पे बारिश हो रही। आई टेल यू इट वॉज सच ए, in fact I learned such a big lesson, what I know the geo-cultural specificity of literature. So you cannot, I mean that's why when you teach English literature and English poem, Milton की poem या Paradise Lost आप पढ़ाते हो, Satan है, God है, तो आज जब Indian audience को पढ़ाते हो तो you have to be very conscious that you are going across culture. So the real problem is, you know, the cultural negotiation, negotiating the culture. So yes, so this was this, I mean, lesson that I got there. Anyways, but I was, I think, fairly early. I was quite a good teacher. And also, you said that when you first heard Panini from one of the professors, you. Please tell it. Oh, that is Chandrasekhar ji. I have said that you asked me na, you set up the Sanskrit center. I said बीच में बहुत कुछ हुआ. I was teaching in Delhi University and there were the linguistics department started a post-MA diploma in linguistics for teachers of English. हमारे लिए ज़्यादा English के language teachers के लिए पर जो mostly English. तो वहाँ एक चंद्रशेखर जी थे पंडित जी, वो भी he is the other third watershed in my life. There was this Baba, there was Brahmanand ji, and this third one. Chandrasekhar ji, of course my mother to, in my many lectures, my mother figures, I quote what she used to say. तो ये इन्होंने चंद्रशेखर जी ने ना पाणिनि, पतंजलि और भर्तृहरि और हेमचंद्र, ये बड़े नाम, वो पाणिनि का नाम बहुत लेते थे। तो मैंने बड़ा मिस्चीवसली कहा एक दिन कि सर वॉज पाणिनि ए कज़िन ऑफ टस्कनी, टस्कनी द इटालियन स्कल्प्टर। तो वो बोले अरे बेटा तुम्हारे इलाके का था, बहुत बड़ा ग्रामेरियन था, इतना बड़ा ग्रामेरियन है कि नासा में भी उसको पढ़ाया जाता है और उसकी नकल करके भी कोई दूसरा व्याकरण नहीं लिख पाया। Then I became curious and I went to the library and I started, that's how I started my shift. My two shifts I think are important. One is just around that time
I got this Southworth asked me to collect spoken Hindi data. In those days बड़ा छोटा spool tape recorder बड़े rare होते थे, बड़े small spool tape recorder which I put in my bag. उसकी लीड को यहाँ से निकाल के कुर्ते के अंदर से यहाँ कुर्ता पैजामा, and I went to this ब्रज एरिया में. तो वहाँ पे I was going from village to village, and sometimes if I had to leave this village and go to the next village, ब्रज तो बड़ा आप जानते हैं ना, ब्रज 84 कोश में, जिसमें चारों धाम वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव है ना, 84 कोश में. तो गांव से गांव जाता था. अगर मुझे पता है मुझे अगले गांव वहाँ जाना है, अगर उस गांव में कोई होता था आदमी जो वहाँ जा रहा है, तो मैं मैसेज भेज देता था दैट आई विल कम डे आफ्टर टुमारो, और वो बता दे. तो मैं बताता मैं मास्टर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ये कुर्ता पजामा पहनता था नेचुरली, अदरवाइज दे विल नॉट टॉक टू यू, गांव वाले बात नहीं करेंगे. And at this time, Professor Kapoor ji, you were a little Marxist, communist minded. Were you influenced by those? No, I was not. No, not communist or Marxist minded, but I didn't have very great idea about what India is. But I was not a very proud Indian. या मुझे समझ नहीं था कि भी हम क्या हैं, बिल्कुल. Except that you see, my history teacher in BA, he had put into my head a lot of things about India's history, good, positive. And I used to have a regret whenever I used to read Indian history those days, कि हार गए. Only when you came to Maharana Pratap or Shivaji, and then you started feeling a little good, कि भी कुछ, क्योंकि सदन तो हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती थी ना, साउथ की तो पढ़ाते नहीं थे, तो ये था. बट बाय एंड लार्ज मुझे कोई कल्चरल स्ट्रेंथ का आइडिया. अंग्रेज़ी पढ़ता था, इंग्लिश की किताबें पढ़ता था. मुझे 5 रुपये मिलते थे फादर से और मंथ, खर्चा, जेब खर्च उन दिनों में, और मैं 5 के 5 जाके किताबें खरीदता था. एंड आई यूज्ड टू रीड, एंड आई रेड ए लॉट. बीए में बहुत पढ़ा मैंने, आई थिंक एंडलेस. I read the whole Mahabharata also in BA when I was a BA student. You see, तो इस तरह के धीरे धीरे, पर एक ग्राउंड तो बनी हुई थी, पर अवेयरनेस नहीं थी कि भी what is the cultural strength. It is when I went to this village where I was to say go day after, but I reached a day earlier. शाम को मैं पहुंचा मोटरसाइकिल पे, और वो चौपाल में ही बुजुर्ग बैठे हुए थे. इट वॉज ए ब्राह्मण गांव था लवानिया का. तो वो लवानिया जो थे वही बड़े वो थे वहाँ. तो उन्होंने कहा हाँ बेटा कैसे आना हुआ, कहाँ से आए हो, तो बताया उनको. मैंने कहा जी मुझे तो कल आना था. हाँ मुझे तो कल आना था, नहीं मुझे तो कल आना था, पर मैं एक दिन पहले आ गया, आज ही आ गया. ये मैंने कहा कि जी मुझे कल आना था पर मेरा काम ख़त्म हो गया उस गांव में, मैं आज आ गया. बोले तुझे तो बेटे कल आना था, पर हमारा भाग्य भी तो जोर मारेगा ना, है ना. एंड इमीडिएटली इट स्ट्रक मी कि इन दिल्ली कोई गेस्ट, आपको गेस्ट क्या, आपका भाई भी लिखे कि मैं 25 को आऊँगा, और तो कोई रिश्तेदार भी लिखे और एक दिन पहले आ जाए, तो प्रॉब्लम हो जाती थी. उन दिनों में मुझे ज़्यादा समझ आई जब लोगों ने एसी लगाना शुरू किया. एक कमरे में एसी लगाया हुआ है बेडरूम में, तब तो गेस्ट नहीं आना चाहिए. गेस्ट आ गया तो भाई उसको कमरा देना पड़ेगा, है ना. फिर जो थर्ड फेज़ इन जो डेवलपमेंट इंडिया का जो हुआ विकास, नेक्स्ट फेज़ थी कि कुत्ता पालने की. कुत्ता घर में रख लेते थे, पेरेंट्स को नहीं रखते, है ना. पेरेंट्स गांव में रहते हैं, but here they would keep something like this. तो anyways this हाँ, तो ये वहाँ से ये जो शिफ्ट हुआ माइंड मेरा. then you know when I was leaving the village he gave me 1 rupee कि बेटा हम ज़्यादा दे नहीं पाएंगे, पर ये तो हमारा धर्म है, फ़र्ज़ है, तुम जा रहे तो हम 1 रुपया तो आपको देंगे, and 1 rupee. And then I changed. In fact, for many years in JNU, I wore kurta pajama. I stopped wearing this dress also.
and I started reading Indian texts, and started teaching myself. And in those days, when I was in JNU, in those days I was asked to, by my head, to take new literatures in English, Canadian, African, Australian, नए आए थे. Publishers were giving free books to major universities so that these courses are started. So my head told me that you are young, these are new literatures, you take, and you know, an international air ticket will be in your pocket all the time. So that set up a reaction in my mind कि इतनी किताबें पढ़ूँ इसलिए कि एयर टिकट, वो 40,000 रुपये वैसे ही खरीद लो बजाय कि इतनी मेहनत करके किताबें पढ़ो. एनीवेज मैंने कहा जी बताऊंगा. 2 दिन बाद बोले कि क्या सोचो. मैं कहा जी नहीं. तो क्या करोगे? तो आई सेड, because there is that story in this, that when I made that joke about Panini Toscanini, and then I went to the library and I could not understand Ashtadhyayi itni si Sanskrit mein. I could read the script but I couldn't understand the rules. Then Chandrasekhar ji told me about S.C. Vasu, who had translated Ashtadhyayi in 1896. But you know, he had incorporated commentaries by Katyayana, by Vaman Jayaditya, by Patanjali, and जो इतनी सी अष्टाध्यायी थी, इतनी सी बस, है ना, इतनी सी अष्टाध्यायी थी, इतनी सी छोटी किताब. It became 2 volumes. पच्चीस करके कमेंट्री दे के. तो मैंने कहा पर साहब वो तो और भी कॉम्प्लिकेट हो गया काम. मैं तो वो संस्कृत है, वो समझ नहीं आई, और ये तो और भी कठिन हो गया काम. तो उन्होंने कहा ऐसे तो छोड़ दे, डिप्लोमा कर रहे हो, तुमने अपने आप संस्कृत भी नहीं पढ़ी स्कूल कॉलेज में, तो ये तुम्हारे बस का नहीं है. कोई भी नया सब्जेक्ट होगा तो कठिनाई तो होगी. अगर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने लगोगे तो मेहनत होगी ना. तो इट्स लाइक दैट. तो यू लीव इट, यू विल वेस्ट योर टाइम, होगा नहीं. मैंने कहा अब आपने ये कह दिया ना, तो हम भी क्षत्रिय हैं, है ना. मेरा कोई इंटेंशन नहीं था. मैंने सर के कहा, प्रेस साहब से कहा, टू डू एमलेट डिप्लोमा के बाद ख़त्म. आई विल नॉट डू एमलेट इन लिंग्विस्टिक्स. और जब मैं सेकेंड ईयर में जो डिसर्टेशन लिखूँगा, आई विल राइट ऑन माई मदर टंग एंड इन पानिनीज मॉडल. कहते हो नहीं सकता. बट सर 2-2.5 साल आई वॉज इन ए वेल. लाइब्रेरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कोई नहीं छोड़ी उन्हीं चीज़. सुबह से शाम घर में भी ले जाना, रात को भी. एंड माई वाइफ विल टेल यू दैट हाउ फॉर 2.5 to 3 years, 2.5 years, आई सिंपली immersed myself. And then I did write a dissertation on Punjabi and in Panini's model. See, and I got, I think 75% marks in my dissertation. और इसका एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एनालॉग है. मुझे पता चला कि प्रोफेसर अगस्त्य लिंगम हैं जो अन्नामलाई के, ये सारी जनरेशन थी जो अमेरिका से लिंग्विस्टिक्स करके आए थे. डेक्कन कॉलेज से डिप्लोमा किया था, जो कि अमेरिकन्स ने वहाँ किया था. और वहाँ से जितने ये सीनियर फर्स्ट जनरेशन थी, कृष्णमूर्ति जी, डीपी पटनायक, ये सब जनरेशन अमेरिका गई, वहाँ से पीएचडी की. दे केम एंड सेट अप सेंटर्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स. तो अगस्त्य लिंगम जी अन्नामलाई में थे. ही वॉज माई एग्जामिनर. मुझे पता चला, ही गेव मी 75 एंड आई हैड वेरी गुड मार्क्स इन एमलेट एंड आई टॉप्ड एंड सो ऑन सब कुछ. 4 ही थे हम, चारों ही टीचर थे. और एक ने तो बल्कि ये कहा कि हम चारों ही टीचर हैं, है ना, हमारे 2-2 नंबर का फ़र्क होगा, एमए का रिज़ल्ट आएगा. पर मेरा और नेक्स्ट में 32 नंबर का फ़र्क था. तो मैंने कहा आप समझ रहे हो, हर सवाल में 2 नंबर का फ़र्क है. हर सवाल में 2 नंबर का फ़र्क है ना. तब इतना ज़्यादा फ़र्क है. तो आई वेंट टू अन्नामलाई 30 years later, 28 years later, एज ए यूजीसी किसी टीम में अन्नामलाई. एंड आई आस्क्ड द पीपल देयर कि एक अगस्त्य लिंगम जी हुआ करते थे. ही सेड यस, ही इज स्टिल अलाइव, ही इज़ 97, ही इज स्टिल अलाइव. वो 95, 94 ऐसे हैं. एंड ही लिव्स वेरी नियर बाई. मैं क्या, आई लाइक टू मीट हिम. तो आई वेंट और पैर छुए और कहा जी मैं कपिल कपूर. This name
it rings a bell. Are you the one who wrote a dissertation on Panini's model? Because that is the only dissertation in Indian linguistics in Panini's model. Nobody does Panini. I say, yes, sir. I remember, he says. It was a wonderful dissertation. देखिए कहाँ जाके तो अब एक लगन लग गई ना, लौ लग गई इस चीज़ से. देन वो फिर जो मैं पढ़ा इतना, इतने जब ग्रंथ पढ़े, दी स्ट्रेंथ ऑफ आइडियाज़. वो जब मैं अंग्रेज़ी की किताब पढ़ता था, उसमें आप 3 पेज पढ़ो, उसमें आप आइडिया ढूंढते हो, हैं कि इसके क्या है, क्या कह रहा है. उधर वृद्धिर्दिच, वृद्धि अदयंग गुण, अयुन अयंग अयोच खैबरट झबंज झब जच गड़बगड़ दश छप खप चटत चट तब कपया शश सर हल. ये क्या है? What is it? You know, in when we read the Western text, हमको उसको छंगना पड़ता है. जैसे स्नो बॉल बड़ा हो जाए स्नो का, उसको हटा के अंदर से गेंद निकालनी है. पर इंडियन टेक्स्ट में आपको पढ़ के उसको इलेबोरेट करना पड़ता है. You have to fill it up. That is why, because the texts are of the oral tradition, they are very abbreviated and they have to be kept in the mind. So they are very short texts. आप पूरे 6 दर्शन 2 घंटे में पढ़ जाओगे और समझ शायद 20 साल ना आए, पर पढ़ 2 साल में जाओ. छोटे होते हैं, इसीलिए उनको समझने के लिए यू नीड अ गुरु. और टीका, हमारे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग टीका परंपरा है, कमेंट्री ट्रेडिशन. सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन माइंड्स व टीकाकार, हाईली ओरिजिनल, एंड एवरी टीका कमेंटरी एक्सटेंड्स द थ्योरी को एक्सटेंड करते हैं. तो अगर आपने व्याकरण, ग्रामर, ग्रामेटिकल ट्रेडिशन पर ग्रामर पढ़ना है, तो यू इज़ नॉट जस्ट पाणिनीज अष्टाध्यायी. यू लाइक टू रीड कात्यायन, यू लाइक टू रीड पतंजलि, you like to read Vaman Jayaditya, you like to read Bhattoji Dikshit, Konda Bhatta. You have to come right down to you know, this Nagesh Bhatta of Karnataka, 1795, who writes Vyakaran Siddhanta Manjusha, Principles of Grammar. Continuous tradition. So India has unbroken, continuous, cumulative tradition. Tradition is parpara, पहला बाद का, of texts and thinkers. Continuous tradition. तो पूरी ट्रेडिशन पढ़नी पड़ती है. बट बिकॉज द टेक्स्ट सूक्ष्म छोटे होते हैं, इसलिए मैं आई हैव एक्चुअली मेट ए ट्रेडिशनल पंडित, अभी दिमाग से नाम उतर रहा है, राव कुछ, इधर आंध्रा में नियर तिरुपति गांव के. यू नो, एवरीथिंग इज इन द माइंड, एवरीथिंग. मतलब व्याकरण के हैं, पर दर्शन, ज्योतिष, मीटर, बौद्ध, जैन, कुछ भी एक अपना सोटी लेके बैठे हुए हैं. यहाँ पे है सब कुछ, एवरीथिंग इज हियर. अब हमने उनसे साथ इंटरेक्ट जब किया, एक यूजीसी ने अरेंज किया, मॉडर्न लिंग्विस्ट हम लोग हैं, क्योंकि कमीज पहनते हैं ना तो मॉडर्न हो गए. सो मॉडर्न लिंग्विस्ट एंड ट्रेडिशनल पंडित्स के साथ डायलॉग. बिलीव मी, फॉर 5 hours or so, we asked him all kinds of questions from modern linguistics. And he explained everything from our own tradition. और शांत, निश्चल, 4 घंटे बैठे हैं बिना हिले डुले. यहाँ तो आधे घंटे बाद इधर से थक जाता आदमी, फिर इधर से थक जाता है ना, शिफ्ट करता है पोजीशन. फिर कई चीज़ें चाहिए, कभी समोसा खाएंगे, कभी चाय पिएंगे. प्रोफेसर कपूर जी, यहाँ से फिर JNU में संस्कृत डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करना, व्हाट इज दैट जर्नी? बिकॉज आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई टोल्ड दैट हेड दैट आई विल, द बुक्स हैव बीन रिटन इन दिस कंट्री which I am a professor of a good university, and it is a shame that I cannot understand those books. I will read those books,
try to understand. The day I understand, I will start teaching them. That is what I will do. She said, you are mad. But then in 1975, I started the first course, Indian grammatical tradition. First in India. There was nobody anywhere. And you know, I started teaching Indian texts in MA English, combined classes होते हैं English linguistics की. I mean, it amazing लगता है आज के कि पाणिनि की अष्टाध्यायी MA English में, भर्तृहरि की वाक्यपदी है MA English में. And the students took to them so much, so well, and I had large classes. You see, average class, क्योंकि we used to admit only 15-20 students in MA, and so 5-4 courses होते हैं, so students बढ़ जाते हैं. 2 साल के 40 स्टूडेंट हैं, किसी की क्लास में 10 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में. My classes used to be never less than 50. Students came from other centers, students came from other schools, because I was a radical teacher, radical. I was a true radical person. Everybody was doing Western, I was doing Indian. And I introduced text series and general courses. जब जनरल कोर्सेज के बाद मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप हमको अब टेक्स्ट कोर्सेज दीजिए. Nowhere in India you have a whole semester, 6 months, only one text, a course on one text, अष्टाध्यायी. 4 टेक्स्ट क्या पढ़ाता था? अष्टाध्यायी, पाणिनि, भर्तृहरि का वाक्यपदी, भरत का नाट्यशास्त्र और पतंजलि का योग सूत्र. और बड़ा क्लियर पर्पस था. अष्टाध्यायी not to learn Sanskrit, but if somebody happens to willy-nilly they gained some Sanskrit also, but purpose was how a domain of knowledge is to be analyzed, and how it has to be categorially structured, and how those categories constitute an intra categorial hierarchy, which is what will show you the structure of a language. You see, so that domain of knowledge को analyze कैसे करना है, उसको state कैसे करना है, इसके लिए. And Bharat's नाट्यशास्त्र as semiotics of communication, not just drama, but dance, music, language, gestures, body language. So much so that in नाट्यशास्त्र even जैसे ये wink कर रहे हैं ना, even the wink, even the way you hold your neck or the way you stand, इतना सूक्ष्म वर्णन है. Yet students used to say कि सर ये एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता. बोला जैसे उसमें ऐसा है सर, एक एग्जांपल बड़ी मोटी जो देता हूँ. He says that when a person talks of something he likes, his hand moves towards himself. मेरा भाई, है ना? But when you are talking of something you don't like, then your hand moves away from you. है बेकार का आदमी है ना? See this guy. और इसी के डांस की जो मुद्राएं, हाथों की मुद्राएं, उनका फंक्शन. So it's an encyclopedia of communication, how you communicate meaning. That Natyashastra is India's first structure statement of music, musical instruments, of dance, of language, and of human typology. For example, how many kinds of female characters हैं? So the typology of women who will, because India unlike the West में तो 16वीं-17वीं शताब्दी में भी लड़कियों का रोल लड़के करते थे. हमारे नाट्यशास्त्र में शुरू में ही लिखा है कि जब प्ले बन गया सारा, तो उन्होंने कहा कि अब किसी बड़े अच्छे क्रिटिक को दिखाना चाहिए. तो वो क्रिटिक कौन थे? भोले बाबा. केदारनाथ में कभी गए हो आप? केदारनाथ ऐसे सेमी सर्कल है, माउंटेन्स रेंजेस हैं, 22,000 फुट की स्नो माउंटेन्स ऐसे, और बीच में मंदिर है केदारनाथ का, भोले बाबा का. तो ये एम्फी थिएटर है.
तो वहाँ पे परफॉर्मेंस हुई, देवासुर संग्राम। अब प्ले हुआ तो बाबा ने कहा बड़ा अच्छा है, मेहनत बड़ी की काका, तुसी बड़ा चंगा है, पर कोई बोरिंग है काम है इसमें ना, कुछ म्यूज़िक, कुछ डांस और कुछ लावण्य होना चाहिए। तो फीमेल रोल जो है वो फीमेल, इट इज सेड दे ब्यूटीफुल गर्ल्स शुड परफॉर्म दोज रोल्स। अप्सरा, तो अप्सराओं ने परफॉर्म किया। हाँ, अब आप जैसे फिल्मों में आजकल नहीं है, वो बात तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। तो देन ड्यू म्यूज़िक और डांस, तो उन्होंने कहा जी फिर वो कैसे होगा कोई, तो उन्होंने कहा वैसे कि एक तंडू ऋषि है, वो मैं जानता हूँ, तंडू ऋषि वो हर वक्त नाचता रहता है और गाता रहता है जंगल में। तंडू, महाभारत में भी उसका नैरेटिव आता है। तो तंडू ऋषि को डायरेक्टर बना दिया गया म्यूज़िक डांस का। मतलब भोले बाबा ने क्या कहा कि प्ले बड़ा अच्छा है, पर भाई इसमें रस होना चाहिए, म्यूज़िक और डांस और ये सारा। और तंडू से फिर तांडव बना, है ना। और लास्य से वो जो फीमेल डांस होता है, लास्य, ये बना। तो ये नाट्यशास्त्र पढ़े, कम्युनिकेशन। एंड भर्तृ वाक्यपदीय इज एन अनइक्वल्ड बुक ऑफ फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, अनइक्वल्ड इन द वर्ल्ड। 3 कांड हैं और उसमें 3rd के 2 पार्ट हैं आगे। एंड ब्रह्म कांड है पहला, ब्रह्मकांड, which is the underlying philosophy. The second part deals with the sentence. The third part deals with the words and particles of grammar, grammatical particles, उसके लिए third part deals with that. And you know, so philosophy of language के लिए वो पढ़ाए। And Patanjali is a yoga sutra, not for physical exercise, क्योंकि वो to the chief purpose, ध्येय योग का है, to sharpen the faculty of the mind, cognitive ability, to sharpen the cognitive ability and cognition. And it said that in the text, if you follow this whole procedure, at the end of it you gain 2 things, 2 शक्तियाँ आती हैं। एक, योर माइंड अक्वायर्स स्पीड, गति शब्द का प्रयोग है, ये आप कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हो ना, स्पीड, कि भाई गति, योर माइंड अक्वायर्स गति, स्पीड। एंड सेकेंड, यू आर एबल टू एक्सपीरियंस थिंग्स विदाउट एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग देम। योर प्रोजेक्ट, योर एबिलिटी टू प्रोजेक्ट द लिटल यू नो into what is not known. I have, क्योंकि I did yoga for many years, which I never much talk about. From 1970 to I think absolutely till I got the, जब मुझे भ्रम हो गया कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, डीन बन गया है, पता है अब समझ आती कितना बेवकूफ़ था। तो उसमें 29-30 years rigorous, I could do very complicated. I used to do शीर्षासन without even putting my hands, just on the head, you know, and 30 years. And I do meditation also. And if you read Yoga Sutra, उसमें बीच में आता है सिद्धियाँ आती हैं। जैसे वो कहते हैं कि person who always speaks the truth, उसके मुंह से जो भी निकलेगा वो हो जाएगा। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि गलत बातें मत बोला करो, पता नहीं किसी वक्त कौन सी बात पूरी हो जाती है। यू सी, सो योग सूत्र इज़ बेसिकली कॉग्निशन एंड कॉग्निटिव, प्रोजेक्टिंग द माइंड एंड प्रोजेक्शन। ये मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है सर। मैंने इसलिए कहा योग किया कि पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ाना भी तो साधना ही है ना, अगर आप इतनी मेहनत करके पढ़ाते हो तो वो भी साधना है, उससे भी सिद्धि आती है। मुझे कई बार हुआ उन दिनों में कि जैसे मुझे एक बार बुलाया कि जी आप आओ, एक हम वेदों पे कर रहे हैं सेमिनार, तो मैं चला गया और मुझे उन्होंने पहले बैठा दिया कि जी आप वेद पे बोलो। अच्छा, मैंने तो ये थोड़ा स्पोरेडिकली इधर उधर कुछ पढ़ा था, वह फिर आंखें बंद की और थोड़ा भोले बाबा का नाम लिया
मैंने उनकी शक्ल मेरे घर में एक लगे हुए हैं, मैंने दिखाए थे आपको शायद, और थोड़े हनुमान जी को देखा तो उनका रिक्वेस्ट किया कि आप ही कुछ करो, और फिर बोलना शुरू किया. एंड आई मीन इट व्हेन पीपल टोल्ड मी दैट वाज फॉर देम इट वाज सच एन एक्सपीरियंस, यू नो, एंड दे न्यू व्हाट इट वाज. मुझे एक बार जीसी पांडे जी ने, हु वाज बड़े ग्रेट विद्वान थे, वेरी ओल्ड, ही वाज द चेयरमैन ऑफ IAIAS फ्रॉम 1999 to 2004 एंड आई वाज ए मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी देन. तो वो ट्रांसलेट कर रहे थे ऋग्वेद को, 5वां मंडल कर रहे थे व्हेन ही पास्ड अवे. तो उन्होंने जब 4 कर लिए तो उन्होंने एक IIC में ना दिल्ली में एक किया, और मुझे कहा कि कपिल तुझे भी आना. मैं कहा जी मैं कहाँ, अब ऋग्वेद इससे बोलूँगा ये वो. कहते नहीं तुम आओ, तुम बोलोगे. और मुझे याद है कि मैंने अगेन यू सी दिस सिद्धि, कुछ नहीं सोचा वहाँ मैं जो लगा बोल, मैं सोच मैंने आई स्टार्टेड बाय आस्किंग के शब्द श्लोक कैसे बनते हैं, है ना, और श्लोक जो है वो फिर मंत्र कैसे बनता है, और फिर मंत्र जो है वो उसकी सिद्धि कैसे होती है ना. और ये इससे शुरू किया मैंने, एंड आई स्पेकुलेटिंग करने लग गया कि उसकी का डेंसिटी है. मुझे याद है कि 3 पार्ट हैं उसके. एक तो इट इज़ एड्रेस टू ए गॉड, उसकी एक शक्ति है. देन एक ऋषि है जो वो उसको कंपोज कर रहा है, और एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हो रहा है. 3 चीज़ें हैं. तो मैं अगर शब्दार्थ भी कर लूँ, समझ भी आ जाए, पर मैं वो ऋषि नहीं हूँ ना, मेरा वो लेवल नहीं है. मेरे ना ही मेरा उस देवता जिसके लिए या पावर शक्ति जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ, ना ही मेरी उसके लिए वो श्रद्धा है. इसलिए मेरे लिए वो श्लोक मंत्र बनेगा ही नहीं. इसलिए मैंने पांडे जी को हाथ जोड़ के कहा कि जब आप संस्कृत को हिंदी में कर देते हो, वो फिर श्लोक ही रह जाता है, वो मंत्र कभी नहीं बनेगा. You basically have a conversation with yourself when you give any lecture. Yes.